एंड जो वेल डिस्ट्रक्शन का पैटर्न होता है, तो एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओके ये कंपनी का आपने कैश फ्लो बैलेंस शीट कुछ देखा एंड ये पैटर्न दिखा आपको, तो इससे वेल डिस्ट्रक्शन का पैटर्न समझ में आ रहा है कि इज देयर एन एग्जांपल, बिकॉज इससे क्या होगा कि लोगों को समझ आ जाएगा कि अगर ये हो रहा है तो ये कंपनीज अवॉइड करनी है एक्सेट्रा। सो पहले ना मैं इस टॉपिक पे बहुत बात करता था और मैं बहुत ट्वीट भी करता था। फिर धीरे-धीरे मैंने करना बहुत कम कर दिया। उसका एक रीज़न था कि कुछ-कुछ प्रोमोटर से डीएम में मैसेजेस आने लगते हैं। आई विल नॉट नेम द कंपनी बट दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई started doing these things little lesser. But their companies were SEBI themselves after some years they declared कि तो I will take a historical company. I will श्योर, not take a current name because of all of this. या I'll श्योर, give you a historic case study with the data. श्योर, दैट बी सुपर हेल्पफुल। सो सबसे पहले तो अगेन आई विल रीआइटरेट कि जो फ्रॉड और ये सब होता है, तो अगेन आई विल कॉल इट वेल्थ डिस्ट्रक्शन बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सी कंपनी में क्यों प्राइस गिर रहा है। नॉट एवरी प्राइस इरोजन इज फ्रॉड, some could be simple wealth destruction. So again the idea is to look through data, and when you look at data, you have like 2000 plus companies, but if you look at companies which सर generated 5,000 less प्लस, than 5, yeah, 5000, राइट? so we have almost 5000 plus listed companies, but I'm more interested in companies where at least 100 crore ka market cap ho. If you look at companies which have given less than 5% CAGR, and again this was an analysis I did 4 or 5 years back, out of this 591, 174 company had complete wealth erosion. So नेगेटिव रिटर्न्स। negative wealth erosion, 70-80% ओह wipe अच्छा, off, that kind of ओके, number. माय गॉड। So ये सब 4-5% कंपनीज में होता है, and there are multiple factors. I'll talk about one company जहाँ पे ये इस तरह की चीज हुई थी. या सॉरी, जस्ट बिफोर दैट, सो इसमें आप बोल रहे हो कि 591 कंपनीज है विद लेस देन 5% कैगर, एंड इसमें से 262 ने नेगेटिव रिटर्न दिया, मतलब -5%, -10%, एंड 174 इज कंप्लीट वेल्थ इरोजन व्हिच I will इज show you a लाइक list. 80-90% इज लाइक इरोडेड। Oh, I'm not carrying that list. So ओके। I don't know if you have heard about a lot of infra companies. They don't even exist. Uh, there was a company called Lanco, and I'm forgetting name of a company which was told it will be next L&T. ओके। Then there was a company in Barcode in IT. So there are a lot of companies. They don't even exist now. There was a company which was famous for Radio Mundu, some technology. So मैं तो 2007 से ट्रैक कर रहा हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ, but that is what I mean by total wealth erosion. My first wealth erosion in 2007 happened in a company called Teledata Informatics. So these companies don't even exist. So today people they don't even know the name. बट So सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट, देखो अगर जैन 11 के हिसाब से 1250 कंपनीज है जो 100 करोड़ मार्केट कैप से ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज आर गिविंग नेगेटिव रिटर्न और लेस देन नहीं, वो 5% टाइम रिटर्न, राइट? बहुत खराब था। तो ये जो है ना ओके। लेस देन 5% का कैगर, हाँ। ये मैंने 3 साल के लिए लिया है। 3 ईयर, ओके। सो 11 to 14 वाज़ first a bear market in itself. So that is why this number is very high. हाँ। So I don't want to focus there. I want to focus ओके। on full wealth erosion, ठीक है। 174 ओके। out of 1245, which is 8 or 10% ओके। kind of श्योर। companies. साउंड्स गुड। So this company, this happened in 2017-18. So this company, it's a dairy company, and I'm just showing you the P&L, balance sheet, and cash flow of this company. ओके। Okay. So if you see till FY17, operating profit was growing, and then you can see और ऊपर गया और फिर 19 में कुछ तो गोची हो गया, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा गोची. If you look at the balance sheet, one thing you can see is कि डेट हमेशा से था और डेट इंक्रीज भी हो रहा था. एंड देन यू कैन सी कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं है बट रिसेबल्स अच्छा खासा था. अगर यहाँ पे पीएनएल देखो तो ऑलमोस्ट उतना भी ज़्यादा नहीं है, 7,000 करोड़ पे 1,300 करोड़ का रिसेबल्स है. बट दिस इज वेयर नोइंग द सेक्टर एंड ऑल इज इम्पॉर्टेंट. कैश फ्लो ये कंपनी कभी नहीं कर रही थी. और डेटर डेज इफ यू सी द कैश कन्वर्शन साइकिल, 90-100 दिन का कैश कन्वर्शन साइकिल है. सो दिस इज देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड क्वालिटी डेयरी. आई डोंट थिंक अभी ये कंपनी ट्रेड कर दी है. हाउ दिस केम ऑन माई रडार, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड टू लुक एट इट. And when I look at the numbers, I told I'm not interested to research. So I told, no, this is where my tools help. So you spend 1 hour that will help you to decide whether this is worth spending next 6-7 days or not. So I told I'm not interested. He was behind कि I know the CXO, I can connect you. मैंने बोला मेरे को करना ही नहीं है. तो he asked कि क्यों नहीं करना है. So if you look at this business, see first thing, this is a very low margin business. So this company dairy में थी, दूध और ice creams ये सब. So dairy is a low margin business, nothing surprising here, but there's a risk. This kind of business
इफ दे डोंट मैनेज देयर डेट वेल, और 1-2% का इन्वेंट्री लॉस या डेट के कारण हो गया, तो आपका 3% का बिजनेस है मार्जिन का, और उसमें आप 1% 2% उड़ा दो, तो फिर आप गायब हो जाओगे. तो यू हैव टू बी ऑन थिन रोप. Business quality, receivables. I have not seen dairy companies on such high receivables. I mean, that means कि आपका आइसक्रीम वो सब नहीं बिक रहा है तभी तो डेयरी में क्या हो सकता है रिसेबल्स, आइसक्रीम ये सभी हो सकता है, कर्ड भी 3 दिन में बिक जाएगा, दूध भी 3 दिन में बिक जाएगा, आपका घी ज़्यादा दिन लगता है, आपका आइसक्रीम भी 1 महीने में बिक जाना चाहिए. सो अगर इतना हाई रिसेबल है तो दैट इज माई फर्स्ट वार्निंग साइन, पियर एनालिसिस. इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? जैसे रिसीवेबल्स तो सीधे से 27% अगर है. 100 रुपए का सेल्स हो रहा है तो 26 रुपए का जो सेल्स है उसका पैसा आया नहीं है, आपने Okay. सेल्स कर दिया है, पैसा लटका हुआ है. Okay. दैट इज व्हाट इज रिसीवेबल्स. सो एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखोगे तो 40% इज वेरी हाई, बट देयर आर इंडस्ट्रीज जो 30% पे काम करती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बट डेयरी इंडस्ट्री काम नहीं करती. तो इसीलिए वो पियर एनालिसिस इंडस्ट्री का भी समझ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये भी एक मेरे को रेड फ्लैग लगा. और क्या रेड फ्लैग था, एक और मीट्रिक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट हैपेंस. ये क्या कहता है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो लेट्स से कि आपका सेल्स हुआ, सेल्स में 100 रुपए का था, लेट्स से 70 रुपए का आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, और लेट्स से 10 रुपए का बाकी सारे एक्सपेंसेस थे, तो 80 रुपए सारे एक्सपेंसेस हो गए, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 रुपए हो गया. अगर आप 20 रुपए पे 15 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इमेजिन अगर वो 20 रुपए का प्रॉफिट गलती से भी 15 के नीचे गया, फॉरगेट प्रिंसिपल, आप इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पाओगे. तो अगर ये 20 रुपए की जगह 50 रुपए है, तो दैट मीन्स आप 3 साल का इंटरेस्ट पे कर सकते हो. तो उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं. तो लुक एट इसका जो डिटोरिएशन हो रहा था, दैट मीन्स कि ये बिजनेस इंप्रूव होने की जगह डिटोरिएट होता जा रहा है. और ये नंबर भी उतना कंफर्टेबल नंबर नहीं है, वर्किंग कैपिटल हैवी है, कैश फ्लोज आ ही नहीं रही हैं. एबिटा पे आप पीएनएल दिखा रहे हो. सो सी, अभी एक और चीज है, इस बुल मार्केट में ना सब लोग पीएनएल ऑर्डर बुक की बात करते हैं. पीएनएल एंड यू नो यू आर ए सी, पीएनएल इज जस्ट अकाउंटिंग. उससे मैं लोगों को बोल दूंगा कि आओ मेरे होटल में खाना खा के चले जाओ, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है. पीएनएल तो ग्रो कर जाएगा, पैसा आया ही नहीं है, राइट? तो रियल कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दे हैड वेरी वेरी पुअर कैश फ्लो. 3 साल कैश फ्लोज ही नहीं आए हैं. 17%, 19%. इन माई व्यू अ वेरी गुड बिजनेस शुड जनरेट 70% of EBITDA into cash flow. 50 to 70 is okay. Anything below 50, I am compromising. And यहाँ तो if you see this number, this was very low. Then you see हर साल मैनेजमेंट इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा. डेट भी है, इक्विटी डाइल्यूशन भी हो रहा है, बिजनेस मॉडल इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है, कैश फ्लोज भी नहीं आ रहा है, टैक्स रेट भी कभी लो था, हाई था. तो सी द थिंग इज, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, हमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है. एनुअल रिपोर्ट मिलता है, कौन कॉल मिलता है. दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डिक्लेयर ए कंपनी की ये फ्रॉड है, ये रेड फ्लैग है. हमारे हाथ में ही नहीं है. इवन जब ऑडिटर्स जाते हैं उनको भी वो इनवॉइस और क्या क्या मांगते हैं, तब जाके भी उनको समझ में नहीं आता है. फिर सेबी एक प्रॉपर ऑर्डर देता है कि जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं दो. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, फॉर अस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल दिस कंपनी इज फ्रॉड और दिस. So all we can say is, if I have a checklist of 30 items and on 30 items 20 items पे टिक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, for me that's a red flag. I don't want to get into company fraud है नहीं है. तो इस कंपनी में many of those red flags. So when none of the red flags get ticked, you get more confidence. When many red flags get ticked, then you lose your confidence. तो यहाँ पे इतना कुछ दिख रहा था, तो हमें पोर्टफोलियो में कितना कंपनी चाहिए? 30-35 कंपनी चाहिए, 2000 कंपनीज है, क्यों एक ही कंपनी के पीछे पड़ना? तो वी कैन ऑलवेज स्किप. सो आई स्किप दिस कंपनी विथ हाई कॉन्फिडेंस कि मेरे को यहाँ इसमें नहीं रहना है. इवन द प्रमोटर होल्डिंग वाज लो एंड ऑल. Interestingly, this company went bankrupt and later a CBI registered a case of fraud. Oh my God. एक और कंपनी है, एक ट्री हाउस करके कंपनी हुआ करती थी. सो बैंगलोर में आई हैड डन अ प्रेजेंटेशन इन 2017 ऑन ट्री हाउस पोटेंशियल रेड फ्लैग्स. यू नो दे वर इनटू प्री स्कूल. सो प्री स्कूल में क्या होता है कि आप बच्चों को भेजते हो. अब स्कूल में कभी आपने सुना है कि 3 महीने के बाद पे किया? स्कूल तो पेमेंट पहले लेते हैं, प्री स्कूल वाले तो एडवांस में पेमेंट लेते हैं. फिर अगेन आपका रिसीवेबल्स कैसे हो सकता है? उसमें भी बहुत सारी चीजें थी. एक इंफ्रा कंपनी थी, इंफ्रा कंपनी को स्कूल वाली कंपनी लोन दे रही है, वो सब करके उसमें भी वही हुआ. उसमें भी सेबी ने केस किया. एंड दैट जजमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट. आई रेड द जजमेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या क्या रेड फ्लैग दिखा था और वहां पे क्या आ रहा है.
तो these are the things, but आजकल मैं ज़्यादा बात नहीं करता because as I told, वो DM आता है तो there is no point in talking and then अभी ये सब हो गया तो. But the idea is to keep a checklist, look at the company from your checklist perspective. अगर बहुत ज़्यादा items tick हो रहे हैं, it's better to stay away. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मेरे को पूरा एनालिसिस, एंड कैसे आपने लाइक सारे नंबर्स के थ्रू डिकोड किया कि दिस इज़ नॉट अ गुड कंपनी, एंड ऑफ कोर्स लाइक पता नहीं बैंकरप्ट आपको तो पता नहीं होगा तब जाने वाला कि नहीं, बट अल्टीमेटली इट कंपनीज हैपेंड. इम्प्रूव भी हो जाती हैं, बट सी आवर जॉब इज नॉट टू लूज मनी. तो जो करेक्ट. इम्प्रूव हो गई ठीक है, इम्प्रूव हो गई, हो गया गया अपॉर्चुनिटी गया, बट पैसा नहीं लूज करना इज द फर्स्ट थिंग, इज नॉट टू लूज मनी. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.